السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں نازیہ کمل۔ ابتدا ہے رب تعالیٰ کے خوبصورت نام سے جو اپنی مخلوق پر بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی بیماری اور آفت سے محفوظ فرما، آمین۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ راجن پور کے شہری خود ساختہ مہنگائی سے پریشان ہیں۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء مہنگے داموں فروخت ہونے لگی ہیں۔ مہنگائی شہریوں کی دہائی۔ راجن پور اور گرد و نواح میں لاک ڈاؤن کے بعد جہاں مزدور بے روزگار ہوئے، وہیں دکانداروں کی جانب سے اشیاء خوردونوش مہنگے داموں فروخت کرنے سے پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے منچائے ریٹ پر کارروائی نہ کی جا سکی۔ مہنگائی بہت ہے، اس کو عمران خان کو چاہیے مہنگائی پہ مطلب توجہ دے، اور جو ابھی اس کی اپنی ٹیم کی نکلے چینی چور، ان کو سزا دینی چاہیے۔ چینی لینے آیا تھا وہ 90 روپے کلو یہاں پہ مل رہا ہے۔ اب بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، کہاں جائے غریب عوام؟ چینی ہے، آٹا ہے، اب جن کے پاس پڑا ہے اسٹاک وہ اپنی مرضی کے ریٹ پہ دے رہے ہیں۔ انتظامیہ ہمارے جو ان کو چاہیے غریب عوام کو ریلیف دیں۔ شہری اشیاء ضروریات مہنگی ہونے کے باعث خالی ہاتھ گھروں کو جانے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ منافع خوروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائیاں کرے تاکہ عوام کی پریشانیوں میں کمی ہو سکے۔ سونامی نے شہریوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی گراں فروشوں نے اپنی رٹ قائم کر لی ہے۔ کھانے پینے کی جس چیز کو ہاتھ لگاؤ قیمت سن کر جھٹکا ہی لگ جاتا ہے۔ محدود وسائل میں 2 وقت کی روٹی کیسے پوری کریں؟ شہریوں کی دہائیوں نے سوالات اٹھا دیے۔ ایک تو لاک ڈاؤن ہے، شہر پورا بند ہے، جو مزدور طبقہ ہے وہ پہلے سے ہی پریشان ہے، اوپر سے رمضان آ رہا ہے، کوئی پرائز کنٹرول کا عملدار جو ہے شہر میں نظر نہیں آ رہا، نہ ہی کوئی ریٹ لسٹ کے مطابق یہاں پر کوئی چیز مل رہی ہے۔ یہ جو منافع خور ہیں وہ اپنی من پسند ریٹ پر جو ہے کھانے پینے کی چیزیں دے رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ رمضان سے آنے سے پہلے جو ہے اپنا ریٹ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرے۔ رمضان کی آمد بہت قریب ہے اور گورنمنٹ کو ایفرٹس کرنے چاہیے کہ پہلے ہی جو پسے ہوئے لوگ ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے لیے ریسورس سینٹر بنانے چاہیے یا اسی سپلائی پوائنٹس کرنی چاہیے جہاں سے دہاڑی دار جو لوگ ہیں وہ رمضان میں تو وہ بالکل ہی ان کے لیے بڑے ایشوز ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں میں چینی مہنگی ہے، آٹا مہنگی ہے، کھجوریں مہنگی ہیں، ہر چیز مہنگی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حالات پہلے روزوں سے پہلے حالات بہت گھٹ تھے، اس لیے اس سے کم کچھ مہنگائی کم ہونی چاہیے۔ دیکھیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مذہبی تہوار ہوتا ہے تو وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی لاک ڈاؤن کے باوجود جو ہے یہاں سبزیوں اور فروٹس کے جو ریٹ تھے وہ انتہائی زیادہ ہو گئے ہیں، اور جو عوام کی جو سخت تھی قوت خرید تھی وہ انتہائی کم ہے۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ ابھی رمضان شروع ہوا نہیں کہ ریٹ بڑھنا شروع ہو گئے، جیسے کہ کھجور کا ریٹ 150 روپے تھا، اب 250 روپے تک کلو بک رہا ہے۔ اور پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ گھی اور تیل کا ریٹ بھی اگر اسٹور میں جائیں تو وہ بتاتے کچھ اور ہیں اور ریٹ جو ہے نا کچھ اور لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور میں حکومت وقت سے اپیل کروں گا کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ اشیاء خورنوش مہنگی ہو گئی ہے، خدا رہا غریب عوام پہ ظلم نہ کیا جائے۔ رمضان ابھی آیا نہیں اور چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ حکومت کو چاہیے بھائی جان، آٹے کے ریٹ بہت مہنگے ہیں، گھی چینی بہت مہنگی ہے، غریب دی پہنچ کی بہت دور ہے۔ ماہ رمضان تو سیر دے آ گئے سہیں، کوئی ہی دے بارے حکومت سوچے۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ نزدیک آنے والا ہے، لہٰذا آٹا، چینی، دال، سبزیاں ہر چیز آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان پر ریلیف دینا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بہت قریب ہے، آٹا، دال، چینی، سبزیاں وغیرہ کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اس لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں ان چیزوں کے ریٹ کم کریں اور مکمل ریلیف دیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں حکومتی ریلیف کے باوجود یوٹیلیٹی اسٹورز پر چینی غائب ہو گئی ہے۔ دیگر اشیاء بھی مہنگے داموں فروخت ہونے لگی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سلطان سدھو۔ ٹیکسنگ میں حکومتی ریلیف پیکج کے اعلان کے بعد اشیاء خوردونوش کی خریداری کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد یوٹیلیٹی سٹور پر جا رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران یوٹیلیٹی سٹوروں سے دالیں اور چینی نہ ملنے سے شہری پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت شہر کے تمام یوٹیلیٹی سٹوروں پر چینی کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ سر جی سان تو ساری چیزوں کی کمی لگ رہی ہے، نہ کوئی چینی ہے نہ کوئی اگلے جڑے ریٹ دستے ٹی وی وہ بھی نہیں دے ہے جی۔ چینی ایک ہفتہ ہو گیا، بولتے آج آ رہی ہے، کل آ رہی ہے، شام کو آ رہی ہے، ابھی ہفتہ ہو گیا وہ چینی تو آتی نہیں۔
शहरियों का कहना है कि घर के राशन में दालें और चीनी अहम जुज है। अगर यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी इसी तरह गायब रही तो रमजान मुबारक से कबल दीगर शाय खुर्दोनोश का बहरान पैदा हो सकता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी, दालें और दीगर शाह की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। हुकूमती पाबंदी नजरअंदाज। दीना में खूनी खेल पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। छोटे बड़े सभी अपनी जान की परवाह किए बगैर पतंगें लूटने में मसरूफ नजर आते हैं। यहाँ पर जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया नोटिस लेकर शहरियों की जान का तहफ्फुज यकीनी बनाए। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जुल्करनैन शाह। हुकूमत की तरफ से पाबंदी के बावजूद दीना और गिरदोनवा में पतंगबाजी अरूज पर है और दफा 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जीटी रोड दीना पर नौजवानों का रश है जो कटी हुई पतंगे लूटने में मसरूफ हैं। ये नौजवान कटी हुई पतंगों पर नजर जमाए जीटी रोड पर तेज रफ्तार गाड़ियों को भी नजर अंदाज कर रहे हैं जो कि ट्रैफिक हादसे का शिकार हो सकते हैं। जबकि दूसरी जानब देखा जाए तो दुकानदार भी पाबंदी के बावजूद कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए छुप छुपा कर पतंगे और डोरें कर रहे हैं। शहरियों के जानो माल की हिफाजत इंतजामिया का फर्ज है, इसलिए गैर कानूनी तौर पर पतंगे और कातल डोर तैयार करने वालों के साथ साथ पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने वाले और पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके, वरना न जाने कितने लोग इस कातल डोर का शिकार हो सकते हैं। कैमरामैन उवैस हाशमी के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। डस्का के शहरियों और दुकानदारों ने दफा 144 को हवा में उड़ा दिया। लॉकडाउन तोड़कर घरों से बाहर निकलकर घूमने फिरने लगे। स्कूल तो बंद हैं लेकिन दुकानदार ने स्कूल में ही दुकान सजा ली है। नवीद इकबाल रिपोर्ट करेंगे। डस्का शहर और उसके मज़ाफात बड़े कस्बात में दफा 144 लॉकडाउन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां जारी हैं। दुकानदार जिन्हें इजाजत नहीं वो भी और जिन्हें इजाजत है वो भी सब के सब दुकानें खोलकर बैठे हैं और शहरी भी घरों से निकल आए। डस्का में तो एक अनोखी ही मिसाल कायम हो गई। एक लालची दुकानदार ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के अंदर दुकान लगा ली और खुद बाहर खड़ा रहता है। गाहक आने पर अंदर ले जाकर अशिया फरोख्त कर देता है। डस्का में शहरी ऐसे घूम फिर रहे हैं जैसे लॉकडाउन का नफाज हुआ ही ना हो। ना डबल सवारी का ख्याल रखा जा रहा है और ना सोशल डिस्टेंस का। शहरी तो ऐसे निकल आए जैसे सुबह ईद हो। अगर इन्हें रोका ना गया तो डस्का में हालात बहुत खराब हो सकते हैं। वबा सर उठाएगी और फिर ना जाने इसकी जद में कौन कौन आकर मौत के मुंह में जा सकता है। इंतजामिया अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए शहरियों को लॉकडाउन की पाबंदी का पाबंद करे। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज़, डस्का। मुबारकपुर के पब्लिक मकामात पेशावर भिखारियों के नरखे में आ गए। कम से इन भिखारियों की भरमार ने अलग अवाम की नाक में दम कर रखा है। इन भिखारियों के सबब गरीब और मुस्तहिक अफराद माली इमदाद से महरूम रह जाते हैं। मुबारकपुर के गिरदोनवा में घर घर मांगने वालों की सदाओं से शहरी परेशानी में मुब्तला है। माह मुकद्दस रमजानुल मुबारक की आमद से कबल पेशेवर भिखारियों ने मुबारकपुर में डेरे डाल लिए। पेशेवर भिखारियों के गौल दर गौल रोजाना के बुनियाद पर शहर की गलियों बाजारों में घूमते नजर आते हैं और जब तक भीख न मिले जान नहीं छोड़ते, जिसके बाद शहरी शदीद ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं। इन पेशेवर भिखारियों की वजह से गरीब और मुस्तहिक अफराद माली इमदाद से महरूम रह जाते हैं। अहले इलाका ने पुलिस और दीगर महकमों से मुतालबा किया है कि पेशेवर भिखारियों से शहरियों को बचाया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन की वजह से जहां शहरी घरों में महसूर हैं, वहीं पेशावर गदागरों ने जीना दो भर करके रख दिया है। जेहलम पुलिस ने शहरियों की शिकायत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बाबर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे शहरी अपने घरों में मशहूर है और दफा 144 का नफाज हो चुका है, लेकिन जेएलएम शहरी पेशावर गदागरों से सख्त परेशान है। डीपीओ जेएलएम का कहना है कि गदागरों के खिलाफ एक्शन किया गया और आने वाले दिनों में भी इनके खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा ताकि पेशावर गदागरों से शहरियों की जान छूटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गदागरों के हवाले से हुकूमत ने भी अहकामात जारी किए हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आपने देखा कि ये शहर में खासकर जहाँ पर गदागारों की शिकायत मिलती है उनके खिलाफ तकरीबन 5 के करीब FIR जो अभी तक हम रजिस्टर कर चुके हैं। बेसिकली ये जो सारी हिकमत अमली है वो इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो डिफरेंट लोग हैं उनके साथ कोई ये गदागरी के रूप में कोई झांसा देने वाले, कोई फ्रॉड करने वाले लोग जो हैं ज़बरदस्ती छीना झपटी ना करें। तो ये हिकमत अमली हमारी जारी रहेगी और मैंने पिछले कुछ दिनों में अपने शहर की हदूद में 4 मज़ीद QRFs का इजाफा कर दिया है, जिनको ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ ये प्रोफेशनल गदागर नजर आए उनके खिलाफ FIR करें, उनको गिरफ्तार किया जाए। बिलाशुबा पेशावर गदागर मुस्तैक लोगों के लिए भी मसला बने हुए हैं जो कि अपनी सफेद पोशी की वजह से किसी से भीख नहीं मांगते, लेकिन ये पेशावर गदागर उन्हें अपनी गदागरी पेशा बना लिया है, जिसकी वजह से शहरी सख्त परेशान है। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़, जेहलम।
लिया में पेशावर भिखारियों के चौक चौराहों समेत कारोबारी मराकज के बाहर डेरे हैं। जहूर दुरानी की रिपोर्ट। मुल्क के बड़े शहरों की तरह अब दूर दराज के पसमानदा इलाकों में पेशेवर भिखारी माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। शहरों के करीब बस्ती की शक्ल में झुग्गियां डाले शहर भर में गौलों की शक्ल में बढ़ जाने के बाद कारोबारी मराकज अस्पतालों और मसरूफ तरीन शहरों पर डेरे डाल देते हैं। अस्पताल, मेडिकल स्टोर या किसी भी कारोबारी सेंटर पर आके शहरियों को हिरासा करके उनसे मुख्तलिफ हीलों बहानों से पैसे बटोरना तो इन लोगों के बाएं हाथ का खेल है। अक्सर इनके मर्द झोंपड़ियों में रहने को तरजीह देते हैं। बच्चे और खवातीन सड़कों चौराहों पर मुख्तलिफ हीलों बहानों से शहरियों को जेबों से पैसे निकालने में मसरूफ रहते हैं। मर्द हजरात जो कि अक्सर नशे की लत में गर्क होते हैं, उनके खर्च मांगने वाले बच्चे और खवातीन के जिम्मा होता है। अगर इनकी झोंपड़ियों का विजिट किया जाए तो बाहर से गुर्बत और कसम परसी की दास्तान बयान करती इन झोंपड़ियों के अंदर जहां लाखों रुपए के मवेशी मौजूद होते हैं तो वहीं बहुत सी आसाइशें भी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। लिया के शहर फतेहपुर की शाहराहों बाजारों में पेशावर भिखारियों की भरमार ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है। शहरियों ने भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। चौधरी शफीक रिपोर्ट करेंगे। फतेहपुर और इसके गिरदोनवा की शाहराहों बाजारों में भकारी मर्दों खवातीन और बच्चों की भरमार शहरियों का जीना महाल हो गया। इन भकारी मर्दों खवातीन की वजह से शहर में खरीदो फरोख्त करने वाले अफराद और दुकानदार भी परेशान हैं। भुखारी खवातीन के साथ मौजूद इनके बच्चे शहरियों को बिलावजह तंग करने लगे। लॉकडाउन जैसी सूरत हाल में भी ये अफराद हर जगह भीख मांगते दिखाई देते हैं। इस हवाले से शहरियों और दुकानदारों का क्या कहना है? ये जो है ना मांगने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, लिहाजा इनके जो है ना खिलाफ ये जो है ना लॉकडाउन होना चाहिए। जो उतने कस्टमर नहीं होते जितने जो है ना मांगने वाले हैं, तो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो कस्टमरों के साथ लिपट जाते हैं, जो है ना इनको जो बहुत तंग करते हैं, तो इनके खिलाफ भी जो है ना लॉकडाउन होना चाहिए। मैं एक दुकानदार हाँ, साडा लॉकडाउन होया पिया। बाजार आइए किसी भी काम को मसला होता है, कोई सब्जी लेन आ गए हैं, सानू अगर पेशावर भखारी टक्कर जाते हैं। इन्हों का लॉकडाउन क्यों नहीं, इन्हों रोका जाए। मर्द नजायज चंगे भले आटे कट्टे फिरते हैं, मंगते उन्होंने बच्चे लत्तां फड़ लेंदे ने, सानू पैसे दिओ, सानू पैसे दिओ। साडी गवर्नमेंट अगे यही इल्तिजा इंतजामिया के इन्हां भखारियां दा लॉकडाउन किया जाए। शहरियों की जानब से इन पेशावर भखारी माफिया के खिलाफ जिला इंतजामिया से कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन जफर मुगल के साथ चौधरी शफीक, सच टीवी, लिया। खानका डोगरा में गंदम की कटाई का काम शुरू हुआ तो जमींदारों ने नासरबाजियां भी शुरू कर दी। खुफिया रास्तों से गंदम दूसरे जिला मुंतकिल करके फरोख्त करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। खानका डोगरा में दफा 144 की खिलाफ वर्जी, मुकामी जमींदार ने ट्रालियों के जरिए गंदम खुफिया रास्तों से जिला बंदी के बावजूद हाफिजाबाद ले जाने की कोशिश की। इत्तला पर SHO खानका डोगरा ने गंदम को कब्जे में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ने कहा कि हुकूमत ने गंदम खरीदने और बारदाने का मरहला इंतहाई आसान कर दिया है। रेट भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बढ़ा दिए हैं। इसके बावजूद स्मगलिंग समझ से बालातर है। मुल्क भर में जारी बारिशों और यालाबारी से गंदम की फसल मुतासिर हो रही है, जिससे काश्तकार शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। गंदम नुकसान ज्यादा है, अद्धे सिट्टे बारिश नाल या हनेरी नाल या विचों दाने डिग पैने आपदे आप ही ते उनदी वजह तो करके भी बारिश नहीं अच्छी की, यानी नुकसान बहुत आया कनक दा। आ देखो जी साडा फसल है ये मीह ते हनेरी ते वबा नाल बीमारी नाल सेम भी साडी गोल हो गई है, ओदे विच भी सुंडी है, नाल लागे आड़ू दा बूटा बाग है, वो भी उल्दी भी डंड लाएगी है, या कनक भी दा फसल तुहाडे सामने, ओ कमांड भी शाहकारा। ये साडा नुकसान हुण भावें हुकूमत पूरा करे ते भावें रब दी जात करे। अगे कणक बहुत कमजोर है, उतो बारिशें आईयां खड़ियां, कणक कपींदी नहीं पई, सारे खर्चे थाए पान, अस मजीद परेशान है। सारे पक्के फसल अगे रहने कमजोर हैं, फसल जेके रही कमजोर हैं, खर्चे इतना था बन, बारिश इतना हद ज्यादा न, फसल सारे गलदे में पक्के फसल जमीन खड़न था। परेशान है जो सारी गंदम की कटाई नहीं होती, अगे ज्यादा बारिश हुई, बारिशों की वजह नाल सारा जो ना फसल का बड़ा नुकसान हो रहा है। पंजाब से गंदम की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। कार्रवाई के दौरान 450 बोरियों से भरा ट्रक कब्जे में ले लिया गया। ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर के नवा हुजरा शाह मुकीम में कार्रवाई के दौरान गंदम की बोरियों से भरा ट्रक कब्जे में ले लिया गया। ट्रक पर 450 बोरियां लदी हुई थी। गंदम प्राइवेट बारदाना में भरकर बसीरपुर से लाई जा रही थी। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
शुजाबाद में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी होने से गंदम तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। आम समेत दीगर बागात भी मुतासिर हुए हैं। वजाहत हुसैन की रिपोर्ट देखिए। शुजाबाद एक तरफ कोरोना वायरस से लॉकडाउन की वजह से माशी बदहाली है, दूसरी जानिब गुज़श्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी होने से गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। वहीं गंदम की पकी हुई फसलों के साथ आम समेत दीगर बागात भी मुतासिर हुए हैं, जबकि इस हवाले से किसानों का कहना था कि बारिश बनी है, इतना मौसम खराब थे, इंदी वजह नाल सारे बड़े नुकसान थे, असा बहुत परेशान है। कणक तबाह थी गन, सब्जियात सारे वो तबाह थी गन। गंदम तैयार थी, चंद दिनों तक कटाई शुरू होनी थी, तो ओले पड़ने की वजह से गंदम जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मौका चेक करें, जो है कुछ खेत तो ऐसे हैं जो ज़मीन के बराबर हो गए, इतना नुकसान। कुल सारी अपील है कि इन्होंने बेचारियों के नाल तावन कीता वंजे, रिलीफ देता वंजे, जिन्हें नुकसान पूरा। काश्तकारों ने वजीर आज़म इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार से मुतालबा किया है कि हालिया बारिशों से फसलें तबाह हो गई हैं, किसानों को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन मुबशिरुल हक के हमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज, शुजाबाद। भक्कर में भी बारिशों के बायस काश्तकारों की तैयार गंदम की फसल तबाही के दहाने पर पहुंच गई है, जिससे काश्तकार परेशान हैं। नासिर अब्बास बलोच रिपोर्ट करेंगे। बारिश के जहां बहुत ज्यादा फवायद होते हैं, वहां पर अगर फसलें पक चुकी हों तो वहां यही बारिश किसानों के लिए तबाही और बर्बादी का पैगाम लेकर आती है। गुज़श्ता दिनों की बारिशों ने भक्कर के गंदम के काश्तकारों पर मनफी असरात मुरतब किए हैं और उनकी पकी पकाई गंदम की फसल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है और उनका कोई पुरसान हाल नजर नहीं आता। पाकिस्तानी किसान मेहनती होने के बावजूद साल हा साल हुकूमती सितम ज़रीफी का शिकार होते हुए नजर आते हैं। ना तो बेचारे किसानों को सस्ती बिजली फराहम की जाती है और ना ही सस्ती खादें, ज़रूरी बीज और अद्वियात की मद में किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाता। डीजल महंगा है, बिजली भी महंगी है, खाद भी महंगी है, मौसमी हालात ही ठीक नहीं। अस जी गंदम की कटाई शुरू की थी, उनकी फी एकड़ 9 बोरियां 10 बोरियां औसत आंदी पई है। कणक की कटाई शुरू है, बारिश दे विच कणक कटेंदे वदे हैं, कोई औसत। मुश्किल हालात में जकड़े इन किसानों की हुकूमत से अपील है कि गंदम की खरीदारी के हवाले से बनाई गई पॉलिसी को आसान बनाया जाए। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिस तरह हुकूमत सनतों की बहाली के लिए रिलीफ फराहम करती है, अगर उसी तरह काश्तकारों को रिलीफ दिया जाए तो कभी भी मुल्क पाकिस्तान गंदम के बोरान का शिकार नहीं होगा। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर बास बलोच, सच टीवी, भक्कर। दादू में गंदम की कटाई का मरहला मुकम्मल हो गया, मगर सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी के लिए न तो सेंटर्स कायम किए गए हैं और न ही काश्तकारों को बारदाना दिया गया है, जिसके बायस काश्तकारों की साल भर की मेहनत खुले आसमान तले खराब होने लगी है। शोएब तहीम रिपोर्ट करेंगे। दादू में कहीं गंदम की कटाई तो कहीं थ्रेशर का अमल जारी है, लेकिन गंदम खरीदारी के लिए सरकारी सेंटर कायम नहीं किए गए, जिसके बायस हालिया बारिशों की वजह से गंदम खुले आसमान तले खराब होने लगा है और गंदम की खरीदारी न होने से काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान का अंदेशा है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है, न कोई सरकारी सेंटर कायम किया गया है, न कोई हम काश्तकारों को, मजदूरों को, ये जो यहाँ पर हमने ये जो गंदम हमारा पड़ा हुआ है, ना ही कोई हमें कोई सरकार की तरफ से कोई बारदाना वगैरह कुछ मिला है। अभी मौसमियात की हालत ऐसी है कि हम गंदम अगर ऐसे ही खुले आसमान के तले रखते हैं तो बारिश पड़ती है, वो गंदम खराब हो रहा है। काश्तकारों का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से काश्तकारों को ना तो बारदाना फराहम किया गया है और ना ही गंदम खरीदने के लिए कोई सेंटर कायम किए गए। महकमा फूड के अमलदार काश्तकारों को बारदाना फराहम करने की बजाय व्यापारियों को बारदाना दे रहे हैं, जिस वजह से मजबूरन काश्तकार सस्ते दामों गंदम व्यापारियों को फरोख्त करने पर मजबूर हैं। हमारा जो गंदम जो है आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, व्यापारी को अनाज दे रहे हूँ, किसी वे 3000 रुपए बोरी खरीद कर रहे हैं। क्या करूँ, हम गरीब हैं, हम अगर एक फसल एवरेज नहीं दे रहा है, 3000 रुपए बोरी व्यापारी खरीद कर रहे हैं। काश्तकारों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि जिला दादू में गंदम की खरीदारी के लिए फौरी तौर सरकारी सेंटर कायम करके काश्तकारों को बारदाना फराहम करके उनसे बेचैनी दूर की जाए, ताकि उन्हें नुकसान का सामना करना न पड़े। शोएब तहीम, सच टीवी, दादू। आरिफवाला और मज़ाफात में होने वाली तूफानी बारिश से मकई और गंदम की फसल पर बुरे असरात मुरतब हुए हैं, जिस पर किसान परेशानी से दो चार हैं। जावेद रजावटू की ये रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला और उसके मज़ाफात में होने वाली हालिया तूफानी बारिश ने मकई और खास तौर पर गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। तूफानी बारिश से गंदम की फसल ज़मीं बोस हो जाने से औसत पैदावार में कमी के खदशे के साथ गंदम की कटाई भी लेट होती जा रही है, जिस पर कर्जे के मारे किसानों ने सर पकड़ लिए हैं। फसल पहले ही साड़ी बड़ी लेट सी सर,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੂਫਾਨੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਮੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਣਕਾਂ ਸੀ गरीबां ਦੀਆਂ, किसान मुंह से यही रोजी। गंदम की कटाई मौसमियाती असरात के बायस पहले ही लेट हो चुकी थी, अब रही सही कसर हालिया बारिश ने निकाल दी है। किसानों का कहना है कि हालिया तूफानी बारिश से मुतासर होने वाली फसलात पर खुसूसी रिलीफ पैकेज दिया जाए ताकि किसान मजीद कर्जों के बोझ तले आने से बच सकें। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। शोरकोट में जारी हालिया बारिशों की वजह से गंदम की तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। वकार खान रिपोर्ट करेंगे। शोरकोट में जारी हालिया बारिशों की वजह से गंदम की तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बारिशों की वजह से जहां फसलों की कटाई में ताखीर पेश आई है, वहीं गंदम की औसत पैदावार भी मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से मुल्क का मेहनत कश तबका किसान परेशानी का शिकार नजर आता है। किसानों का कहना है कि गंदम की बुवाई के वक्त जो है वो हमें डीजल महंगा मिला है, खाद महंगी मिली है, पेस्टिसाइड जो है वो महंगी मिली है। अब जबकि हमारी फसल जो है वो तैयार हो चुकी है, तो हुकूमत मुख्तलिफ शराइत आयद कर रही है कि नमी को चेक किया जाएगा। तो ये बेमौसमी बारिशें हमारे पास में नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो भरपूर तरीके से किसानों को रिलीफ दे। जी, हमने गंदम की कटाई शुरू की है और बेमौसमी बारिशें शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से गंदम की जो है हमारी एवरेज मुतासर हुई है। हमारी हुकूमत से अपील है कि वो काश्तकारों के साथ तावन करे और कोई रिलीफ फंड हमारे लिए जारी करे। हालिया बारिशों की वजह से गंदम को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से किसान परेशान नजर आते हैं और किसानों का गवर्नमेंट वक्त से मुतालबा है कि इनको रिलीफ पैकेज फराहम किया जाए। वकार खान, सच न्यूज, शोरकोट। होता है, जाहिर बात है। कोट सुल्तान में गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी, मगर लेबर न होने की वजह से काश्तकार परेशानी में मुब्तला हैं। बारिशों से फसलों को पहले ही नुकसान पहुंचा है, मगर अब कटाई न होने से पैदावार भी मुतासिर होने का खदशा है। रिपोर्ट करेंगे अजमल खान। लिया के शहर कोट सुल्तान पहाड़पुर में गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है, मगर ताहाल कटाई का आगाज नहीं हो सका, जिससे काश्तकार शदीद परेशान है। कोरोना खदशात के बैस लेबर गंदम की कटाई से हिचकिचाहट का शिकार है। लिया में हालिया बारिशों से गंदम की फसल पहले ही मुतासर हो चुकी है, मगर अब कोरोना खदशात के बैस कटाई मुतासर होने पर जमींदारों की परेशानियां बढ़ रही हैं। काश्तकारों का कहना है बारिशों की वजह को ते कोरोना वायरस की वजह को इनके साकू लेबरा बिल्कुल नहीं मिलता पिया। कप्पण वास्ते जेडे बंदे चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलते पे। लोग डरदन भाई अगर असा कप्पण आऊँ तो साकू पुलिस वाले मरेंदन भाई रश ना करो, इन वास्ते कप्पण वास्ते क्यों नहीं आता। दूजा बारिश आए सारी कणक की बिल्कुल देख सकते तबाही मची पी है, कशे कहीं नहीं बचे भाई, असा बड़े परेशान है। बारिश की वजह लो सारी कणक फना थी गई है, मेहरबानी थी वही काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नुकसान बढ़ने की वजह से हुकूमत गंदम के निर्खों में इजाफा किया जाए ताकि काश्तकारों की मुश्किलात में कमी हो सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल खान, दस्ती, सच न्यूज, कोट सुल्तान, लिया। वतन अजीज में गंदम की कटाई का सिलसिला अपने उरूज पर पहुंच गया है। हारूनाबाद में गंदम के इलाकों में बारिश और यालाबारी के बायस काश्तकार परेशान हैं। अरशद अली गौरी रिपोर्ट करेंगे। की महीनों की मेहनत गंदम की पकी हुई फसल की सूरत में बिल्कुल तैयार खड़ी है, जिसकी कटाई और घाई जोरों शोर से जारी है। गंदम की फसल पूरे मुल्क के लिए साल भर का गल्ला फराहम करने का अहम जरिया है। इस वक्त कुदरत की तरफ से बारिश और ज़ालाबारी हमारे गुनाहों पर अल्लाह ताला की नाराजगी का इजहार दिखाई देता है, जिस पर किसान समेत हर कोई परेशान दिखाई देता है। जरूरत इस अमर की है कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगी जाए, ताकि कोरोना वायरस से परेशान लोग मजीद बेमौसमी बारिशों से गंदम के होने वाले नुकसान से बच सकें और वतन अजीज पाकिस्तान के किसान मुल्क में गंदम की ज्यादा से ज्यादा पैदावार में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। पंजाब के शहर कमालिया में बेमौसमी बारिशों और यालाबारी से गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई है, जिससे काश्तकार परेशान हैं। काश्तकारों ने वजीर आजम से इमदादी पैकेज का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं असद राजपूत। कोरोना वायरस ने जहां हर तबके को नुकसान पहुंचाया, वहीं बेमौसमी बारिशों और ज़ालाबारी की वजह से गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से जिम्मेदार काफी परेशान दिखाई देते हैं। जिम्मेदारों का कहना है बेमौसमी बारिश नाल साडियां कणकां खराब हो गई, गंदम जी कट के माल पा रहे हैं असीं, लिया कोई हुकूमत साडी तावन करे जिम्मेदार। जेड़ा ना जी गंदम जेड़ी है ना जी पक के तैयार हो गई है। पहले कोरोना का मसला बनया रहा जी,
ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਕਣਕਾਂ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕਰੀਬ ਹਨ, ਤੇ कुछ न कुछ इंतजाम करना चाहिए हुकूमत को। बेमौसमी बारिशों से गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई है। फसल को काटकर जानवरों को बतौर चारा डालने पर मजबूर हैं। एक तरफ कोरोना वायरस ने शदीद नुकसान पहुंचाया तो दूसरी जानिब बेमौसमी बारिशें और शदीद ज़ालाबारी फसल पर बड़ी बुरी तरह असरअंदाज हुई है। गंदम की फसल आ जनाब बेमौसमी बारिशां होईयां ते उहदे नाल ना खराब हो गई है ते कट के माल नूं असीं पा रहे हैं ते हुकूमत नूं चाहीदा वे कोई साडे नाल तामन करे। बेमौसमी बारिश पई ते जिम्मेदारां नूं बड़ा नुकसान पहुंचा ते मेहरबानी हुकूमत दा कोई तामन करे। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जिम्मेदारों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि नुकसान का बार वक्त अजाला किया जाए। जिम्मेदार खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। बेमौसमी बारिशों और ज़ालाबारी की वजह से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। जिम्मेदार गंदम की फसल काट कर जानवरों को चारे के तौर पर डालने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि हुकूमत वक्त उनके लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच टीवी, कमालिया। दौरे जदीद में भी लियाकतपुर के देही इलाकों में गंदम की कटाई के लिए दरांतियां तैयार की जाती हैं। मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट देखिए। लियाकतपुर में गंदम की फसल पककर तैयार होते ही दरांतियां बनाने वाले लोहारों के रोजगार खुल गए। गंदम की कटाई का अमल शुरू होते ही लियाकतपुर के देहाती इलाकों में जगह जगह लोहार दरांतियां बनाते नजर आ रहे हैं। दरांती बनाने के लिए लोहे के टुकड़े को आग में गर्म करके हथौड़े की जरब पर सीधा करके लकड़ी का दस्ता लगाकर तैयार की जाती है। फी दरांती 150 से 200 रुपए में फरोख्त होती है। गंदम की कटाई के लिए दरांतियों को अहम जुज माना जाता है। दुकानदारों का कहना है कि साल में एक माह इसका सीजन होता है। महंगाई के दौर में दरातियां फरोख्त करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। कैमरामैन फैसल शाहिद के साथ साकिब सरवर कादरी, सच न्यूज, लियाकतपुर। ठुल हमजा में गंदम की फसल पककर तैयार तो हुई लेकिन बारिशों की वजह से औसत पैदावार में कमी हुई जिसके बायस किसान परेशान दिखाई देते हैं। फयाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। ठुल हमजा और गर्दनवा में किसानों की तरफ से काश्त की जाने वाली गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी। किसानों की जानिब से फसल समेटने का सिलसिला शुरू कर दिया गया और किसान गंदम 1400 रुपए फी मन के हिसाब से हुकूमती मुकर्रर करदा सेंटर पर फरोख्त करने लगे लेकिन बारिशों की वजह से औसत पैदावार में खासी कमी हुई। इस बारे छोटे काश्तकारों ने बताया कि महंगे दामों खाद, तेल, स्प्रे खरीद कर गंदम की फसल पर लगाते रहे। जमीनें भी अपनी नहीं ठेके पर ली हुई है। शदीद बारिशों की वजह से गंदम की फसल तबाही के दाने पर पहुँचने की वजह से औसत पैदावार में खासी कमी हुई जिससे हमें पैदावारी और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत रिलीफ फराहम करे। इस बारे काश्तकारों ने अपने मौके में बताया कि मैं छोटा जा जिम्मेदार हाँ ये बारिशां दे निनामे जरा है ना सी फसल बिल्कुल सारे तबाह थी गए कैसा नहीं बची। मैं छोटा जा जिम्मेदार हाँ बारिश ने साकू तबाह कर दिते कणक की औसत नहीं पिया देंगे। महंगाई की चक्की में पिसे किसानों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि गंदम का सरकारी रेट कम अज कम 1500 रुपए फी मन मुकर्रर करे। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठुल हमजा। मियांवाली के इलाके पिपला के मोजाजात दरियाई कटाव की जद में आ गए हैं। मुतल्लिका महकमे खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगे हैं। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही दरियाई कटाव में इजाफा हो जाता है। तहसील पिपला की यूनियन काउंसिल कच्चा गुजरात के मोजाजात इस वक्त दरियाई कटाव की जद में है। 2 माह कबल डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर महकमा अनहार के अफसरान के साथ मौजा का दौरा भी किया था मगर बात महज दौरे तक ही महदूद रह गई। कटाव को रोकने के हवाले से ताहाल किसी किस्म के भी कोई इकदामात नहीं किए गए। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और अवामी नुमाइंदों से बंद की तामीर का मुतालबा किया है। जीओसी मेजर जनरल खुरम सरफराज खारिया का चकवाल का दौरा किया और डीसी ऑफिस चकवाल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया और डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में अहम इजलास की सदारत भी की। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब। मेजर जनरल खुरम सरफराज ने चकवाल का दौरा किया और डीसी ऑफिस के लॉन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में अहम इजलास की सदारत करते हुए कोरोना के SOPs चेक किए जिस पर डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर अब्दुल सत्तार एहसानी ने उनको ब्रीफिंग देते हुए बताया कि चकवाल में कोरोना से बचाव के लिए DHQ हॉस्पिटल, मरीज सेंटर, कैडेट कॉलेज में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि सख्त लॉकडाउन रखने से जिला भर में इंतजाम बहुत अच्छे रहे। एहसास कफालत
प्रोग्राम पर रोशनी डालते हुए उन्होंने बताया कि जिला भर में 25 पॉइंट पर हमने सेंटर्स कायम किए हैं और ज्यादातर सरकारी स्कूलों के अंदर ही सेंटर्स बनाए गए हैं। मेजर जनरल खुर्रम सरफराज ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इंतजाम और कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश करते हुए इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस किस्म की वबाई मर्ज पाकिस्तान में पहली दफा देखने में आई है, जिसे हमने मिलजुल कर मुकाबला करना है। कैमरामैन शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, सेच न्यूज, चकवाल। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह अहमदपुर सियाल में भी दूसरे मरहले के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम तकसीम करने का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर सियाल में दूसरे मरहले के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के दूसरे फेज में खवातीनों हजरात को इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट हाई स्कूल में इमदादी रकूम की तकसीम के लिए बनाए गए सेंटर में पुलिस और फौज के जवान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि सेंटर में कोरोना वायरस के मुमकिना फैलाव के पेश नजर बेहतरीन हिफाजती इकदाम भी किए गए हैं। इमदादी रकूम की तकसीम के लिए तहसील में 2 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई का सिलसिला अब जारी रहेगा। चौक सरवर शहीद में इल्म दोस्त नौजवान ने ऑनलाइन लेक्चर्स के जरिए से तुलबा की मुश्किलात हल कर दी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद अली। कोरोना जैसी खतरनाक वबा ने हर शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मुतासर किया है, जिसमें शोबे तलीम भी शदीद मुतासर हुआ है। ऐसे में तुलबा की रहनुमाई के लिए चौक सरवर शहीद का दरस व तदरीस से वाबस्ता काशिफ ने ऑनलाइन लेक्चर्स के जरिए तुलबा को पढ़ाई में पेश आने वाली मुश्किलात को कम कर दिया है, जिससे तुलबा घर बैठे आसानी से मुस्तफीद हो सकते हैं। काशिफ नदीम का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, तुलबा और वालिदैन में पाए जाने वाली तशवीश की पेश नजर लिया गया ये इकदाम काबिल सतैश है। आज के इन हालात को मद्देनजर रखते हुए कोरोना वायरस की वजह से तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं। तलबा और वालिदैन में इस हवाले से काफी तशवीश पाई जाती थी कि उनके बच्चों में और स्टूडेंट्स में तालीम के हवाले से काफी रुकावटें पैदा हो रही थी। तो इस हवाले से हमने कोशिश की है, हमारी ये काविश है कि तलबा को घर बैठे हुए उनको ऑनलाइन लेक्चर्स के जरिए से, ई लर्निंग के जरिए से हम वो तमाम तर स्टूडेंट्स के मसाइल मद्देनजर रखते हुए उनको निसाबी जो एक तालीमी उनका जो निज़ाम था उसमें जो रुकावटें हैं थी उसको खत्म करने के लिए हमने ये स्टेप लिया है। घर बैठे तलबा सिर्फ इंटरनेट की सहूलत से अपनी तलीमी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए महकमा सेहत खानीवाल ने मौसर इक़दामात उठा लिए। विजयवाला के दाखिली और खारिजी रास्तों पर कड़ी चेकिंग का आगाज कर दिया गया है। तजम्मुल कुरैशी रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महकमा सेहत खानेवाल के अफसरान बाला ने जिला खानेवाल के दाखिली रास्तों पर महकमा सेहत के अमले को जिला में दाखिल होने वाले लोगों के चेकअप के लिए बिठा दिया गया, ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। विजयवाला के दाखिली रास्ते पर पुलिस छपकला की मदद से हर दाखिल होने वाली गाड़ी, मोटरसाइकिल सवार को रोक कर महकमा सेहत के अमले की तरफ से मुकम्मल कवायफ को दर्ज किया जाता है और इससे नजला, जुकाम, खांसी के बारे में पूछगछ भी की जाती है। पुलिस छपकला के कौमी रजाकार फकीर मोहम्मद ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हम तैयार हैं। जियावाला के मकीनों ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महकमा सेहत के इस इकदाम को सराहा है। कैमरामैन टीम के साथ जम्मल कुरैशी, सच न्यूज, विजयवाला। शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस भी पेश है। बहावल नगर में पेट्रोलियम पुलिस के एहलकारों ने शहरियों के हाथ वॉश करवाए और मास्क भी तकसीम किए। शहरियों की फलाह के लिए पेट्रोलिंग पुलिस भी मैदान में आ गई। बहावल नगर में शहरियों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए तमाम इदारे अपना अपना किरदार अदा करने में मसरूफ हैं। पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों ने फतेहकोट रोड पर हर आने जाने वाले के हाथ वॉश करवाए और उनमें मास्क भी तकसीम किए गए। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस ने शहरियों के साथ साथ एहलकारों को भी कोरोना से मुतालिक आगाही और एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। इंतजामिया गफलत और लापरवाही की हर हद पार कर गई। बहावलपुर के इलाके चुन्नी गोट में कायम वाहिद वेंटी अस्पताल की इमारत टूट फूट का शिकार हो गई, जबकि कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। सिद्दीक खान रिपोर्ट करेंगे। बहावलपुर के शहर चनीगोट का नवाई इलाका बख्तियारी में वेटरनरी अस्पताल भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। इमारत टूट फूट का शिकार हो गई है। अस्पताल में ना कोई डॉक्टर है और ना कोई काम करने वाला अमला है। यहाँ के आवाम अपने जानवरों के बीमार होने की वजह से परेशान है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर और अमले न होने की वजह से हमारे कीमती जानवर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अगर अस्पताल में खातिर खवा इंतजाम न किया गया तो हमारे जानवरों में मजीद बीमारी फैलने का खदशा हो सकता है। लिहाजा आवाम का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि अस्पताल में डॉक्टर और अमले को पाबंद किया जाए ताकि परेशानी से बचा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज, चनीगोट।
बाग में बारिश से जल थल एक हो गया। नदी नालों में तुगयानी आ गई। बादलों की आंख मिचौली ने जहां मौसम खुशगवार बना दिया, वहीं कोरोना की वजह से लोगों के दिलों में एक खौफ भी मौजूद है। आमिर अली सैयद रिपोर्ट करेंगे। मौसम ने बदली करवट, अब्रे रहमत खुलकर बरसा। रिमझिम ने बाग के मौसम को सुहाना बना दिया। मौसम के बदलते तेवर ने रंगीन नजारों की दिलकशी में इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है कि मौसम तो अच्छा है, लेकिन इस मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए हम कहीं जा नहीं सकते। तो दिल तो बहुत करता है इसमें थोड़ा बाहर निकलें, लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि बाहर निकलना मजबूरी बनी हुई है। तो अभी ये सामान थोड़ा सा लिया है, तो इस वजह से जो है ना, जो जाहिर है पूरे मुल्क में वबा का सिलसिला चल रहा है, उसकी वजह से हम जो है ना वापस अभी घर की तरफ जा रहे हैं। उस हवाले से जो एक गर्दिश है खबर आम पब्लिक के अंदर कि मौसम जितना सर्द होगा इस वायरस के बढ़ने के असरात भी ज़्यादा होंगे, तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस मौसम के साथ साथ लोगों को इसकी जो शिद्दत है सर्दी की दोबारा लौट रही है, इसमें एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। ये वक्त ऐसा है यकीनन इससे महजूज नहीं हुआ जा सकता, लेकिन लॉकडाउन के दौरान आलूदगी कम होने से माहौल खुशगवार हो चुका है। काफी फर्क पड़ा है इसमें जो पहले और अब के मौसम में, क्योंकि आलूदगी कम हो गई है, डस्टिंग कम हो गई है, गाड़ियां न होने की वजह से इसमें जो धुएं की वजह से फजा आलूदा हो रही थी वो साफ हो गई है। और महसूस होने वाली जो बात है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कि हर शख्स परेशान है इस वक्त कोरोना की वजह से। कुदरत की अहम निशानियों में से एक निशानी आसमान से बारिश का नज़ूल है, जो इंसानों के अलावा रूए जमीन पर बसने वाली दीगर मखलूकात की जिंदगी और बका का एक अहम अंसर है। बारिश किसी भी मौसम में हो, इससे माहौल पर खुशगवार असरात ही मुरतब होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की सूरत में इस खतरनाक वबा ने ऐसे पंजे गाड़े कि खुशियां मांद पड़ने लगी। कैमरामैन सकलैन हसन के साथ आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग, आजाद कश्मीर। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के दावे रेत की दीवार साबित हुए। मसन पीरकोट सधाना में इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो गई। शहर भर की गलियों में जमा पानी जौहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। मसन पीरकोट सदाना में ग्रीन एंड क्लीन पंजाब का ख्वाब हकीकत ना बन सका। गंदे पानी का जोड़ तालाब का मंजर पेश करने लगा। लोगों को मुजी जानलेवा बीमारियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। गंदे पानी की वजह से न सिर्फ डेंगू का खतरा है, बल्कि और भी कई मुजी जानलेवा बीमारियों के फैलने का खदशा है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया के नोटिस में बार बार लाने के बावजूद आज तक कोई भी नकासियाब के लिए अमली इकदाम नहीं किया गया। लोगों ने एहतजाज करते हुए जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि इनकी और इनके बच्चों की जिंदगियों पर रहम किया जाए। इनकी जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए जरासीम कुश स्प्रे के साथ साथ गंदे पानी के जोड़ को भी खत्म किया जाए। लोगों का मजीद कहना था जनाब इस पानी की वजह तो बड़े तंग है, इतने तंग है जिसका हिसाब कोई नहीं। बच्चे सारे बीमार हैं, कुछ ही कोई नहीं करेंदा पे, इधर वेदा भी कोई नहीं पे, कोई बंदा इतने रहा कोई ना। असा आवाम बहुत तंग है, कोई साढ़े नाल कीता वजे। हमारी जो है इस जिला जंग के इंतजामिया से अपील है कि यहाँ तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ गंदगी के ढेर हैं। तकरीबन 3000 की आबादी है, तो मुख्तलिफ तालाब हैं और मच्छर इतने मच्छर डेंगू वायरस का फैलन इम्कानात हैं। कैमरामैन ज़ैनब बादशाह के साथ सैयद अमीर बादशाह, साइट टीवी, मसन जंग। जिंदगी रवां, जरा फासला, दूर रहें, महफूज रहें। हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें। अपने आगाही पैगामात सच टीवी को भेजें। Stay safe, stay wash your hands for 20 seconds. Don't touch anyone. Cover your face before going outside. Salam to doctors and paramedical staff. अपनी जिंदगी का ख्याल रखें, समाजी फासला रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। Stay at home. प्लीज आप सब अपने घरों में रहें। अगर आपने बाहर निकलना है तो सैनिटाइजर और मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप घर में हैं तो हाथ, पाँव और मुंह 20 सेकंड तक धोएं। रोजाना 20 सेकंड तक हाथ धोएं और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और घर में रहें। रोजाना 20 सेकंड तक हाथ धोएं और सैनिटाइजर यूज करें और घर में रहें। पाकिस्तान के डॉक्टरों को सलाम है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें और हिम्मत से काम लें। अपने घरों में रहें, सफाई का खास ख्याल रखें। तो प्लीज घरों में रहें, बाहर मत निकलें, कोरोना फैलाव है। नाम ही नहीं, दिल भी सोने का रखता है। मेहनत कश ने लॉकडाउन से बेजार उदास बच्चे को देखा तो रह न पाया। अपनी जबान और हाथों को ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लिया। ऐसा साज बनाया कि बच्चा भी झूम उठा।
جھنگ کے محنت کش سونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ وہاڑی کے علاقے ماچھیوال میں ایک شہری کو نجی ٹارچر سیل میں رکھنے پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر احسان اللہ چوہان نے سب انسپکٹر انویسٹیگیشن کو معطل کر دیا۔ معاملے کی مزید تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر احسان اللہ چوہان نے ایک شہری کو نجی ٹارچر سیل میں رکھنے پر سب انسپکٹر انویسٹیگیشن انچارج محمد سعید کو معطل کر کے معاملے کی مزید تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ڈی ایس پی صدر خالد جاوید جویا کو انکوائری کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ وہاڑی کے نوائی اڈا ماچھیوال کی رہائشی مبینہ پولیس تشدد کا شکار نوجوان محمد وسیم نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 3 روز قبل رات تقریباً 3 بجے مبینہ طور پر ایس ایچ او ماچھیوال اور دیگر درجن کے قریب ساتھیوں کے ہمراہ اس کے گھر داخل ہو گئے اور اس پر تشدد شروع کر دیا۔ اہل خانہ نے چھڑانے کی کوشش کی تو انہیں بھی بےایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے زبردستی ساتھ لے گئے۔ گھر سے نقدی اور دیگر اشیاء بھی ساتھ لے گئے۔ اسے 2 روز تک اپنے نجی ٹارچر سیل میں حبس بے جا میں رکھا اور وہاں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ متاثرہ نوجوان محمد وسیم نے نجی ٹارچر سیل میں رکھنے کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ بجلی چوری اب نہیں چلے گی۔ چوک سرور شہید میں میپکو سب ڈویژن عملے کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ چودھری ساجد علی رپورٹ کریں گے۔ میپکو سب ڈویژن سرور شہید عملے کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ میپکو سب ڈویژن سرور شہید کو اطلاع ملی کہ مبینہ طور پر بجلی چوری ہو رہی ہے، جس پر ایس ڈی او حافظ علی حسن نے میپکو کی ٹیم موقع پر روانہ کی، جس میں میٹر انسپکٹر رانا محمد سلیم، لین مین رانا ذوالفقار، میٹر ریڈر محمد راشد موقع پر گئے تو دیکھا ڈائریکٹ کنڈیاں لگا کر بجلی چوری کا عمل جاری تھا۔ اسی دوران میں مبینہ بجلی چور ڈنڈے لے کر موقع پر آ گیا، میپکو ٹیم پر حملہ کر دیا، ڈنڈے برسائے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا رہا۔ ہنگامی صورتحال پر ایس ڈی او موقع پر پہنچے اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کو آتا دیکھ کر بجلی چور فرار ہو گیا۔ اتھارٹی کے احکامات کے مطابق ہماری بجلی چوری کے خلاف کمپین جاری ہے اور اس سلسلے میں ہم دن رات چیکنگ کرتے ہیں۔ آج بھی میٹر ریڈر جب دوران ریڈنگ گیا تو اس نے ہمیں ایک جگہ پہ بجلی چوری کی نشاندہی کی۔ جب میں اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پر تقریباً 10:20 پہ پہنچا تو صارف ثاقب لطیف مین پی وی سی سے ڈائریکٹ تار لگا کر بجلی چوری کر رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی میپکو سرور شہید عملے نے بجلی چوری کے 2 مقدمات تھانہ سرور شہید میں درج کروائے ہیں۔ جب اس حوالے سے موقف لیا گیا تو شہری کا کہنا تھا کہ وابڈہ اہلکار جھوٹے مقدمات درج کروا کر تنگ کر رہے ہیں۔ ایس ڈی او میپکو سب ڈویژن سرور شہید کی بجلی چوری کے خلاف وہ کارروائیاں جاری ہیں۔ شہریوں نے ایس ڈی او کے اس اقدام کو خوب سراہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری ساجد علی، سچ نیوز، چوک سرور شہید۔ ہنگو میں جرگے کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ اصلاحی کمیٹی محمد زئی تنظیم نے 7 سالہ دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیا۔ اسمت اللہ رپورٹ کریں گے۔ ہنگو کے علاقہ محمد خواجہ میں اصلاحی کمیٹی محمد زئی تنظیم کی کوششوں سے 2 فریقین مامو اور بانجے کے درمیان 7 سالہ پرانی دشمنی کا خاتمہ ہو کر دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے آپس میں بغلگیر ہو گئے۔ 2014 میں ہنگو کے علاقہ محمد خواجہ میں کابل مت خان، حاجی محراب خان اور حاجی گل حیدر کے بیٹوں کے درمیان تلخ کلامی پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد جان بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے تھے۔ اصلاحی کمیٹی محمد زئی تنظیم کو ہاٹ کے امیر حاجی گلمیر، ملک مست عالم خان، قاضی شفیع الدین ہجرت خان اور محمد خواجہ کے مشران حاجی محمد رضوان خان اور مولانا سمیع اللہ نے دونوں فریقین کے درمیان دشمنی ختم کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کی۔ بالآخر ان کی کوششیں رنگ لے آئی اور 7 سالہ پرانی دشمنی کا خاتمہ ہوا۔ سارے قوم انتہائی خوش ہے اس معاملے کے ختم ہونے پر اور دونوں فریقین اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے دونوں کو معاف کر دیا۔ اس موقع پر جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے جرگہ سلیسان کا کہنا تھا کہ دشمنی سے نسلیں تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ ماں سوائے دکھ اور درد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ آپس میں چھوٹے موٹے اختلافات اور دشمنیاں ختم کر کے بھائیوں کی طرح زندگی گزاریں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ صبر اور معافی ہے۔ جرگے کے موقع پر دونوں فریقین ماموں اور بانجوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بغلگیر ہو کر ایک دوسرے کو معاف کیا اور آئندہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں اور دوستوں کی طرح رہنے کا اعلان کیا۔ کیمرامین محمد مہران کے ساتھ اسمت اللہ، سچ نیوز، ضلع ہنگو۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔